Hello dear students of ninth grade. Today I will go through the revision of unit test. In this preparation I will discuss about the first chapter of civics. The name of the chapter is our constitution. So let's start with the brief discussion about this chapter. In this chapter, we will go through the definition of constitutions, date of adoption, date of enforcement and its significances. जैसे बच्चों आपको पता ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया का संविधान है. The constitutions of India came into effect on 26th of January 1950 when India became sovereign democratic republic. 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था. हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये जो चैप्टर है ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये एक बार में नहीं बना था. देयर वर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स कम इन बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. फर्स्टली जो है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी. आफ्टर दैट कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके बीच में. डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उनका बहुत ज़्यादा जो योगदान था, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो बनाया था. डॉक्टर अम्बेडकर पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया. He was an eminent jurist, economist, politician and social reformer. The text of the constitution prepared by Baba Saheb provided for constitutional guarantees and protection for a wide range of civil liberties for individual citizen, including freedom of religions. उन्होंने इस सब संविधान बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखा था ताकि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको रिलीजन की फ्रीडम मिले. The abolitions of untouchability, social rights for women and a system of reservation for a job in the government services of member of scheduled caste and scheduled tribes. जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग थे और जो लेडीज़ थी उस टाइम की, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कोई इक्वली अधिकार नहीं दिए जाते. तो ये सारे मैटर्स जो है वो बड़े ध्यान में रखे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय. So student, this is not too long chapter, so please you don't need to be worry about this chapter. These are very small questions are given in this. So let's start. First is, what is meant by the term constitution? Constitution का क्या मतलब है? Answer is, constitution is a comprehensive document containing a set of rules according to which the government of a country runs. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट होते हैं बहुत सारा जिसमें रूल्स जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाए गए थे और जिसके हिसाब से जो हमारी सरकार है वो वर्क करती है. ठीक है. सेकंड इज़, ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड. ऑन द बेसिस ऑफ अ proposal of the freedom fighters, a constituent assembly was set up. Third one is, what is known as the objective resolution? Answer है, it's a momentous resolution that outlined the drafting ideals of the constitutions of independent India. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़ ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है इंडिपेंडेंट इंडिया का. ठीक है. नेक्स्ट इज, बाय whom was the objective resolution proposed? Answer is, objective resolution was proposed by Pandit Nehru on December 13, 1946 for highlighting the national goals. Next question is, who was appointed as the chairman of the drafting committee of the constitution? Answer is, Dr. Bhim Rao Ambedkar was the chairman of the Constituent Assembly drafting committee, which was set up on August 29, 1947. Next question is, when was the constitutions adopted and passed? The constitution was adopted and passed by Constituent Assembly on November 26, 1949. Next is, when did the constitutions come into force? Answer is, the constitution as a whole came into force with effect from
26th of January 1950. Next is, why was January 26 chosen for the commencement of the Constitution? 26 जनवरी ही की क्यों चूज़ की गई थी? It has a history. The date January 26, 1950 chosen for the commencement of the Constitution because of its historical importance at the Lahore session of the Congress held in December 1929. लाहौर में भी जो है कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, that was held in 1929. A resolution was passed which declared पूर्ण स्वराज का मतलब है टोटल फ्रीडम और complete independence to be objective to the of the Congress. Since then, the day was celebrated as Independence Day up to 1947. उस दिन से लेके 1947 तक ये जो डे था इसको एज ए इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता था, बट लेटर ऑन इट वाज डेजिग्नेटेड एट द रिपब्लिक डे. नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस. विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सप्लेन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज, नेम द प्लान विच प्रपोज टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हाउ वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड. कैसे इलेक्ट किए जाते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स. The cabinet mission arrived in India in 1946 and put forward a set of proposals to meet the demands of the freedom fighters. One of these proposals involved setting up of a constituent assembly whose members were to be elected indirectly by the provincial legislative assembly lower house only. Next is, how was the membership of the Constituent Assembly reduced as a result of partition of the country? The answer is, the membership of the Assembly of India stood 299 against the original number of 385 members due to the partitions of country. जब इंडिया की पार्टीशन की बात हुई थी ऑन दैट टाइम 299 जो है वो अगेंस्ट थे मेंबर्स इस असेंबली में. ठीक है. नेक्स्ट इज, हाउ कैन यू से दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी. A wide-ranging membership of the assembly gave representation to all shades of public opinion. ठीक है. जैसे मुस्लिम एंड सिख ग्रेस लीडर्स, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स ऑल इन वन गॉड कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें सभी धर्मों को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब्स हैं या किसी भी धर्म से रिलेट करता है, दे गॉट द कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन. सबको जो है बराबरता का ही हक दिया गया था. नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सप्लेन द फॉलोइंग. हु प्रपोज द रेजोल्यूशन, व्हेन वाज द रेजोल्यूशन पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेम द एक्ट दैट गेव लीगल सैनिक्टी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन December 13, 1946. The resolution was passed by the Constituent Assembly on January 22, 1947. 49th Amendment Act 1984 gave legal sanctity to the Constituent Assembly. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्टली जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था. द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को. नेक्स्ट इज, state any 3 points of the objective resolution. First is, free India will be nothing but a republic. रिपब्लिक का मतलब ये है ना आपका, इट मीन्स कि पीपल जो है उनको इक्वली जो है वो सारे अधिकार ये रिपब्लिक में ही मिलते हैं. सेकेंड इज, द आइडल ऑफ सोशल, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वुड बी ग्रांटेड टू ऑल पीपल. थर्ड वन इज, द रिपब्लिक वुड ग्रांट फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन. अब इसमें सेकंड क्या है, द आइडल्स ऑफ सोशल, पोलिटिकल, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी वुड बी ग्रांटेड टू ऑल पीपल, कि सारे लोगों को इस बात की गारंटी दी जाएगी कि उनको इकोनॉमिकली, पोलिटिकली एंड सोशली जो है इक्वली माना जाएगा और उनको जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन को वो प्रॉपर दिए जाएंगे. नेक्स्ट वन इज, लिस्ट 4 प्रिंसिपल्स दैट बाबा साहेब अम्बेडकर इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. कौन कौन से थे. फर्स्ट इज, made the Indian constitutions workable, flexible and strong enough to hold the country together both in peace and in war.
जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था अम्बेडकर जी ने, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, और जो हमारा इंडिया है वो हम सारे फैसले, वो चाहे पीस हो चाहे वॉर हो, वो आराम से ले सकता है। सेकंड इज़ प्रोवाइडेड स्पेशल सेफ गार्ड टू द माइनॉरिटीज़ एंड सर्टेन क्लासेस। कुछ क्लासेस को है वो ज़्यादा माइनॉरिटीज़ दी गई थी, स्पेशल सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए थे, हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सामाजिक तौर से और पढ़ाई की तरफ से कुछ पीछे हुए थे। Third one is incorporated directive principles to ensure social and economic democracy and welfare of the people of the India. Next is single citizenship, single judiciary, uniformity of fundamental law to integrate Indian society. So this is the end of our today's assignment. I hope you well understand, and good luck for your test preparation. Thank you.